Good afternoon, class. Welcome back. Now we are going to continue with the chapter that we have left, which is your biomolecules. In the previous class, what do we discussed? We discussed about amino acids and proteins, yes? And we also discussed what are micro elements and all those things, right? Now we are going to continue with that part. We have finished amino acids and proteins. Now we have to finish in today's classes your lipids, your carbohydrates, your nucleic acids or nucleotide, and we have to also finish the topic of enzymes. Once we are done with all these things, we will be done with the chapter. Okay, easy. See, understand one thing, in this chapter we have to be very sure with the names and the structures. Clear? So let's start with the lipids. Now what are lipids? How do we like, what exactly is lipids? Okay, lipids are nothing but they are formed by the fatty acids and glycerol, right? So what are lipids? Yes. So your lipids are nothing but made up of fatty acids and alcohol. Specifically, if I say it is glycerol. Okay. Now how the name lipids came? In Greek, lips means fats, and that's how the name lipids came. Okay, now remember, your lipids are going to be always insoluble in water but soluble in the organic solvents. Okay, they are always going to be soluble in the organic solvent. Example दिया हमको benzene, ether, alcohol, etc. Now the term lipids was given by the scientist named Blood. Now what will happen whenever there is an oxidation of lipid? You are going to get 9.3 kilocal energy. So consumption of lipid is also important for us, right? We can't just only rely on carbs for everything. Okay, coming back to how they are classified. Now one thing we need to remember, lipids when they are formed. So now we just saw that lipids are formed by fatty acids and glycerol. So to join them, you are going to need a certain type of bond. That bond is going to be your ester bond. कौन सा bond form हो रहा है? Ester bond. ठीक है? Now based on that, so this is exactly how your ester bond is going to be. Your alkyl group, your carbon, and this your sp. Okay? Now your lipids are divided into three major categories. ठीक है? What are the three major categories? First is your simple lipid, conjugate lipid, and then you have derived lipids. Simple lipids, so we are going to talk about your neutral lipids or true lipids, which is we will see further, and then we are going to talk about waxes. I hope you guys know what are waxes. Yes, we see different types of waxes, that also we will discuss. Then in conjugate lipid, it is going to be one lipid group and the other group is going to be a non-lipid group. And in that we are going to have phospholipid, glycoprotein, lipoprotein, and sphingolipids. And in derived lipids, we are going to talk about the steroids. I hope you all know what are steroids. ठीक है, steroids के बारे में basic understanding सबको है कि क्या होता है. But how they are exactly formed and what is the composition, that we'll study here. And last is your terpenes. Okay, shall we start? Chalo. Yeah. So let's start with the simple lipids. What are simple lipids? They are going to be made up of fatty acids and glycerol with the help of ester bond. So how many fatty acids are going to be? There are going to be 3 fatty acids which are going to be joined with your glycerol. This point is very important कि कितने हैं कितने fatty acids होते हैं. ठीक है? So you have trihydroxy alcohol है, उसको बोलते हैं propane 1, 2, 3 ol. So this is the structure that is formed. ठीक है? Fatty acids होते क्या हैं? They are nothing but the hydrocarbon chains with COOH group, which is a carboxylic group. ठीक है? अब this is going to be always be attached with your any methyl group up to 19 carbons. ठीक है? अब इस कार्बन के बेसिस पे I have divided fatty acids into 2 types. First is your saturated and unsaturated. So saturated में कितने bonds होंगे? चलो बताओ. Saturated में you are going to have no double bonds, single bonding होगी. And unsaturated में you are going to have double bonds. Okay? Then in saturated part, what we are going to see? They are going to have high melting point and high boiling point.
whereas your unsaturated are going to have low melting point and low boiling point. Majorly saturated जो होते हैं they are going to be of animal source. Okay, so mostly in animal part we have written. Example है palmitic acid which is having 16 carbon. ठीक है, what is the structure? 15 carbon का वो methyl group होगा और like alkyl group होगा and one is going to be your COH carboxylic group. Whereas here what happens when we talk about plant part, we are going to have two categories. One is monosaturated fatty acids which is called MUFA and the other one is going to be polyunsaturated fatty acid which is PUFA. ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है स्टेरिक एसिड का विच इज 18 कार्बन. So CH3, CH2 16, then COOH. Coming back to your MUFA and PUFA, yes. So your monosaturated like MUFA के अंदर क्या होता है? एक डबल बॉन्ड होता है. एग्जाम्पल क्या है उसका? ओलिक एसिड 18C कार्बन. This is the exact formula how it is going to be. Okay. So it's CH3 bracket CH2 bracket close 7 CH double bond CH then again same and then COOH. In PUFA you are going to have 2 or more double bonds. That means you can have 2 bonds, 3 bonds, 4 bonds, any. So based on that again we have categorized. So 2 bonds वाले जो हैं उसके अंदर हमारे पास है linoleic acid which is C18. 3 bonds वाले में है linolenic acid which is C18 again, but with respect to the bond formation it differs. Then 4 bonds where you have arachidonic acid which is C20. Now remember your linoleic acid and arachidonic acid are your essential fatty acids. That means you needs to be taken in डाइट. इसीलिए हम लोग जब बहुत बार खाना खाते हैं या इन द पैकेट्स इन द पैक्ड फूड यू माइट हैव सीन वी हैव मेनी अ टाइम्स रिटन मूफा. ऑयल के ऊपर मोस्टली लिखा होता है मूफा पुफा के बारे में एंड ऑल. क्लियर, इजी. चलो जस्ट मिनिमाइज दिस थिंग्स. वेट फॉर अ सेकेंड. चलो लेट्स टॉक अबाउट ट्राइग्लिसराइड्स. कैसे बनता है ट्राइग्लिसराइड्स? सो दिस इज अ ग्लिसरॉल. ठीक है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है. उसके साथ में एज आई टोल्ड यू ग्लिसरॉल के साथ कितने फैटी एसिड्स ऐड होते हैं? 3 फैटी एसिड्स. सो 3FA विच विल गिव यू द फॉर्मेशन ऑफ योर लिपिड्स विद द रिलीज ऑफ 3H2O. वेरी इंपॉर्टेंट. समझा? तो ये यहाँ पे है जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं एस्टर बॉन्ड, इफ यू गाइस रिमेंबर. करेक्ट. अब जब लिपिड्स की कैटेगरी आती है तो लिपिड्स को हमने डिवाइड किया इनटू 2 कैटेगरीज, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सेम. सो सैचुरेटेड में तुम्हारे ट्राइग्लिसराइड्स आएंगे विच इज अगेन वी कैन ऑल्सो कॉल ट्राइग्लिसराइड और अनसैचुरेटेड वाइस वर्सा व्हाटएवर इट इज. तो सैचुरेटेड में मेजरली हमारे आते हैं सारे सॉलिड फैट्स. अनसैचुरेटेड में आते हैं जो लिक्विड फैट्स होते हैं. कैन यू गाइज गिव मी अ क्विक एग्जाम्पल? तुमको पता है ये चीज़ हम लोग के डेली लाइफ में यूज़ होता है. सॉलिड में आएगा घी, बटर. लिक्विड में आएगा तुम्हारा ऑयल्स. यस, कूल. सो इफ यू फोकस योर सैचुरेटेड आर अगेन एनिमल बेस्ड, अनसैचुरेटेड आर अगेन प्लांट बेस्ड. सेम पीछे भी हुआ था फैटी एसिड्स के टाइम पे. इजी. सो या सी दिस इज द स्ट्रक्चर. सो दिस इज योर पैल्मिटिक एसिड. फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर है. ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है. इससे ये बना है तुम्हारा ट्राइग्लिसराइड. समझा? देन दिस इज योर फॉस्फोलिपिड. दिस वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर जो हम लोग ने कॉन्जुगेट में पढ़ा है. सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक. एंड लास्ट इज दैट स्ट्रक्चर इज अबाउट योर कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल तो पता है ना, तुम लोगों को सुना है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल. सो सम अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज इंपॉर्टेंट. और क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम लोग ने सेल चैप्टर में पढ़ा था.
ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन के लिए, yes, so some amount of cholesterol is important for you, but excess cholesterol is not important. Clear? चलो let's move to the next page. Let's talk about waxes, right? अभी हम लोग सिंपल पे है ना, तो हम लोग पहले waxes खत्म करेंगे. अब waxes किस चीज़ से बने हैं? फैटी एसिड्स प्लस एल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल. यहाँ पे ग्लिसरॉल का इंपॉर्टेंस नहीं है, यू डोंट नीड ग्लिसरॉल हियर. ठीक है. नाउ ये यूजुअली कवरिंग फॉर्म करते हैं. प्लांट बेस्ड होगा, एनिमल बेस्ड होगा. प्लांट बेस्ड में क्या होगा? ये जो क्यूटीन और सुबेरिन होता है हमारे लीव्स के ऊपर, लोटस के ऊपर, देखा है वैक्सी कोटिंग क्रिएट होती है, दैट इज योर प्लांट वैक्स. एनिमल वैक्स हमारे पास कुछ कुछ अलग अलग चीज़ है. जैसे कि सबसे पहले बीज वैक्स. बीज वैक्स सबको पता है, बीज के थ्रू हम लोग को जो मिलता है, बीज हमको हनी देती है और बीज वैक्स देती है कोम की वजह से, राइट. तो उस बीज वैक्स में क्या होता है? फैटी एसिड्स प्लस म्यूरिसिल अल्कोहल होता है, जो वर्कर बीज के एब्डोमेन में होता है, जिसकी वजह से वो लोग बीहाइव बना रहे हैं. देन यू हैव ईयर वैक्स, yes, which is in your ears. It is released by your cereminous gland in your external ear to protect your eardrum. So ear wax is also थोड़ा अमाउंट में important है, इसीलिए ज़्यादा नहीं करना होता. But when it increases, you need to obviously clean, but don't clean खुद से ही कुछ करके, okay? Proper steps से करो, it's better. Linoleic wax है जो sheeps के fur में होता है. ठीक है, काम होता है, उसको हम लोग वुल वैक्स भी बोलते हैं, प्रोटेक्शन के लिए होता है बेसिक. देन यू हैव स्पर्मेथेटिक वैक्स विच इज प्रेजेंट ऑन द स्पर्म का, वेल के स्पर्म के हेड पे, जैसे हमारे पास एक्रोजोम है मेल्स केस में, राइट. वैसे ही यहाँ पे स्पर्म ऑफ वेल इज गोइंग टू हैव दिस वैक्स. समझा? किधर यूज़ करेंगे ये वैक्स को? ल्यूब्रिकेशन में यूज़ करेंगे, जेट इंजिन्स में यूज़ होता है ताकि हाई पावर भी मिल सके. Easy. Let's talk about conjugate. Yes, conjugate lipids में क्या क्या आएगा? ठीक है, conjugate lipids में you have first example है lectin, which is the most abundant lipid of your plasma membrane, या we can say biomembrane. ये हमने सेल वाले चैप्टर में भी लिखा है ये सेम लाइन, but I know no one is going to remember this. That's why I have written it again and you have to remember it. Okay? So what we will do here in first category है phospholipid. तो it's very obvious कि एक फैटी एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाएगा विथ एनी फॉस्फोकोलिन ग्रुप. कोलिन मतलब जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक ग्रुप होगा वो. तो क्या होगा? सी दिस इज द एग्जैक्टली स्ट्रक्चर. सो वन थिंग वी नीड टू रिमेंबर, योर जी पार्ट इज गोइंग टू बी हाइड्रोफोबिक एंड योर सी पार्ट इज गोइंग टू बी हाइड्रोफिलिक. यहाँ पे मिक्सचर है चीज़ों का. ओके. Then, so this is the structure how it is going to look like, and this part is your choline ka structure. Here you are having phosphate, and hence you are getting your desired thing. Your phospholipids are always amphoteric in nature. As I said, they have both group, hydrophilic and hydrophobic as well. ये भी हम लोग ने सेल चैप्टर में पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन के टाइम पे. Okay. Then you have glycolipid, which is lipid plus carbohydrate part, which is लिपिड प्लस एनी ओलिगोसैकेराइड, मेजरली ग्लाइकोकैलिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, विच इज़ द आउटर मेम्ब्रेन. बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में था, याद है? बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में ग्लाइकोकैलिक्स होता है. फिर उसमें भी हम लोग ने कुछ कैटेगराइज की थी, फिर उसके बेसिस पे वी डिड इट द व्हाट वी से ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव डिस्कस किया था. देन लिपोप्रोटीन विच इज लिपिड प्लस प्रोटीन विच इज फाउंड इन योर ब्लड, मिल्क, एग. Then sphygmolipid is lipid plus amino alcohol group. जब amino alcohol group एक साथ आता है तो उसको हम बोलते हैं स्फिग्नोसिन, इसीलिए स्फिग्नोलिपिड बोलते हैं उसको. सो S प्लस फॉस्फोकोलिन, S प्लस ग्लूकोक्लोलिन, दो कैटेगरी है. अमाइनो का अलग है, ग्लूकोज का ये अल्कोहल ग्रुप का थोड़ा सा अलग कर रहे हैं हम. सो फॉस्फोकोलिन में क्या बनेगा? स्फिग्नोमाइलिन, विच इज़ द माइलिन शीट जो हमारी बनाती है न्यूरॉन्स की. वहाँ पे है हमारे पास सेरिब्रोस्पाइस, विच इज व्हाट आउटर शीट ऑफ नर्व में जो होता है वो. यूजुअली अगर ये एब्सेंट है तो तुमको डिजीज होगी, विच इज योर गेशियस डिजीज. एंड गैंग्लियोसाइट्स होते हैं विच इज इन योर ग्रे मैटर. ग्रे मैटर फॉर्म करने में हेल्प करते हैं. अगर एब्सेंट है तो क्या होगा? यू हैव हर्ड अबाउट टेशैक डिजीज, तो वो डिजीज हो सकती है. Clear? Sure.
चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्या था, नेक्स्ट डिराइव्ड लिपिड्स. व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? डिराइव्ड लिपिड्स. डिराइव्ड लिपिड्स मतलब क्या होते हैं? दीज आर द लिपिड्स विच डू नॉट हैव एस्टर बॉन्ड, they do not have fatty acids. Then why they are called as lipids? Because they show properties like lipids. Exactly lipids नहीं है but properties दिखा रहे हैं. प्लस उनका जो पैरेंटल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? पेंटानाइन रिंग जैसा. ओके, सो कैन यू सी दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर. अभी रिंग स्ट्रक्चर में क्या है? 17 मतलब 17 कार्बन्स है. तो इसमें क्या बनता है? 4 रिंग स्ट्रक्चर जो है उसमें से 3 हेक्सागोनल होंगे and one is going to be pentagonal. Can you see pentagonal? Yes. Then second steroids में फर्स्ट कैटेगरी है स्टेरॉल्स की, विच इज योर कोलेस्ट्रॉल, जिसमें गुड और बैड होता है. गुड को HDL बोलते हैं, बैड को LDL बोलते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या होता है? कोई तो एक OH ग्रुप एडेड होता है. सेकेंड है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन. देन थर्ड यू हैव कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. कॉर्टिजोल्स पता है ना? एग्जैक्टली सेम. देन विटामिन D which is cholecalciferol. Then you have prostaglandins, ये भी पढ़ा है अपन ने. Yes, so they form arachidonic acid C20. It is a local hormone for vasoconstriction and vasodilation. हमारी बॉडी में होता है. Yes, I want you guys to tell me the example of prostaglandins in the next class. Then you have terpenes. Terpenes क्या है? They are made from isoprene units of C5H8. ठीक है, C5H8 क्या है बच्चों? क्या है C5H8? सो एग्जाम्पल यहाँ पे विटामिन A, E and K. देन रबर विच इज योर पॉलीटर्पीन्स. कैम्फर, मेंथॉल विच इज कैरोटिनॉइड्स. ठीक है. नाउ इफ वी समराइज एवरीथिंग, व्हाट आर द जनरल फंक्शंस दैट वी सॉ फॉर लिपिड्स? कि वो हमको एनर्जी दे रहे हैं एज अ फूड, वो फैट कैरियर है फॉर yes vitamins के लिए. now it is going to form absorbent cushion around your vital organs such as kidney and ovary. then nerve impulse को fast करने के लिए edible oil देता है हमको, and it can also be used as a hormone. done with lipids. shall we move to the next part? The next part is carbohydrates. now carbohydrates are going to be fun for us because they are the hydrates of carbon. easy. इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. यस, इजी है. कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग शुगर्स वगैरह की बात करने वाले जो तुमको इंटरेस्टिंग लग सकता है. नाउ कार्बोहाइड्रेट्स का मेजर ग्रुप क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ठीक है, कार्बन तो बाय डिफॉल्ट होगा ही, बट इसके अलावा ये दोनों होते हैं इन द रेशियो 2:1. अब 1 ग्राम ऑफ कार्ब इज गोइंग टू लिबरेट हाउ मच एनर्जी? 4.2 किलो कैल ऑन ऑक्सीडेशन. यहाँ पे बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. एंड इसीलिए हम यहाँ पे वर्ड सैकेराइड यूज कर रहे हैं. समझा? सो एज आई सेड वी हैव मोनो, ओलिगो एंड पॉली. मोनो मतलब ओनली वन टाइप ऑफ ऑल द चेन्स विल बी देयर. ओलिगो में क्या होता है? 2 to 9 डिफरेंट चेन्स कैन बी देयर. पॉली में क्या होता है? मोर देन 10 चेन्स यू आर गोइंग टू हैव. डिफरेंट भी हो सकता है. पॉली में क्या होता है? हमारे पास होमोपॉलीसैकेराइड जिसमें सेम टाइप के कंपोनेंट्स और बॉन्ड्स बनेंगे, एंड दूसरा हेटेरो जिसमें डिफरेंट बनेगा. तो वही अभी हमको इन डेप्थ पढ़ना है. सो मोनोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें, सो योर मोनोसैकेराइड्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी स्वीट टू टेस्ट. बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल कार्ब्स. सारे कार्ब्स मतलब डायपॉली सब मोनो से ही बनने वाले हैं. देन दे हैव अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप. दिस इज दैट जनरल फार्मूला CnH2nOn. और C जो है वो रेंज कर सकता है 3 to 7. ठीक है. अब रिमेंबर योर सेलुलोज इज वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ. ठीक है. अब हमने यहाँ पर उनको डिवाइड किया है, जैसे कि इफ आई हैव 3 कार्बन्स, तो अगर अल्डिहाइड कैटेगरी है तो उसमें मेरा एग्जाम्पल क्या बनता है? पहले हम ये देखते हैं फॉर्मूला क्या बनता है. फॉर्मूला बनता है C3H6O3. ठीक है. तो इसका अल्डिहाइड क्या बनता है? ग्लिसरल्डिहाइड. बहुत बार सुना है हमने. इट इज़ नथिंग बट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ योर फोटोसिंथेसिस, राइट? देन उसमें कीटोन का कोई कैटेगरी नहीं है, तो वी हैवंट रिटन दैट. देन यू हैव
टेट्रोज 4 कार्बन, सो C4H8O4. इसमें है एरिथ्रोमोस शुगर which is used in the synthesis of anthocyanin and it is anti-cancerous agent and it helps in the formation of your lignin. ठीक है, लिग्निन तुम्हारा डेड टिश्यू है, याद है ना, मतलब लिग्निन की वजह से तुम्हारा टिश्यू डेड हो रहा था, याद है, यस. देन इट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू टू मेक योर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स. ये साइड पे यू है एरिथ्रोलोज विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन सनलेस टैनिंग एजेंट. नाउ व्हाट इज सनलेस टैनिंग एजेंट? सी इफ यू गाइज नो, बहुत लोग को टैनिंग पसंद होती है, एवरी टाइम सन के साथ टैन नहीं हो पाता. दिस इज इंडिया में दिस इज नॉट अ इशू, बट फॉरेन कंट्रीज में दे लाइक टैनिंग. सो व्हाट दे कैन यूज ऐसा डिफरेंट थिंग्स. तो जो केमिकल्स वगैरह में होता है, ऐसे सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिसके वजह से यू कैन हैव दैट टैनिंग इफेक्ट, तो उसमें यूज हो रहा है. देन वी हैव पेंटोज विच इज़ 5 शुगर, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें राइबोज आता है जो हमारे डीएनए और आरएनए में होता है. व्हेन वी से पेंटोज शुगर है तो दैट इज योर राइबोज शुगर. देन यू हैव अरबिनोज एंड जाइलोज जो हमारे प्लांट में पेक्टिन और हेमीसेलुलोज बनाने में हेल्प करता है. ये साइड पे यू हैव राइबुलोज एंड जाइलुलोज. लास्ट है तुम्हारा, नहीं लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट है, राइट. सेकेंड लास्ट है हेक्सोज विच इज C6. ठीक है, 6 कार्बन एटम्स है इसके अंदर. सो C6H12O6. एग्जाम्पल है तुम्हारा फेवरेट ग्लूकोज. देन यू हैव ग्रेप शुगर विच इज योर डेक्सट्रोज. अभी डेक्सट्रोज का एक कैच है, ये है एपीमर ऑफ ग्लूकोज. अब एपीमर क्या होता है ये अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट ये याद रखना क्या कहाँ पे डिफरेंस होता है, 4th कार्बन में डिफरेंस होगा. कहाँ डिफरेंस होगा, 4th. यू नो व्हाट आर आइसोमर्स, एग्जैक्टली आइसोमर्स की हेल्प से ही हम लोग समझेंगे एपीमर्स क्या है. ठीक है, और यहाँ पे फ्रुक्टोज है विच इज योर फ्रूट शुगर, सबसे स्वीटेस्ट है, एग्जाम्पल हनी. लास्ट है अपने पास हेप्टोज C7H14O7 विच इज योर सेडोहेप्टेज एंड ब्यूसिडोहेप्टेज. ठीक है, अब ये सारे जो है ना, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो शुगर की होती है वो हमेशा डी फॉर्म में होती है. केमिस्ट्री में पढ़ा है तुमने ना, डेक्स्ट्रोलेवेटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी. सो यहाँ पे हमेशा डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म होगा. नाउ व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स? रिड्यूसिंग शुगर्स मतलब क्या, जिनके पास फ्री CHO या C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है. ठीक है, और इनको तुम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू क्यूपरिक आयंस, फिर वो कन्वर्ट होते हैं इनटू क्यूपरस आयंस. तो जब भी मैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन यूज़ करूँगी या फेलिन सोल्यूशन यूज़ करूँगी विच इज़ एक्चुअली ब्लू इन कलर, तो ये मेरा लेट्स से हम लोग ग्लूकोज की टेस्ट करनी है, यूरिन की टेस्ट करनी है, उसमें ग्लूकोज है या नहीं है. तो आई एम गोइंग टू टेक अ यूरिन sample, I am going to add Benedict solution. If it turns brick red color, that means glucose is present. अगर no change है या फिर blue दिख रहा है तुमको, that means उसके अंदर ग्लूकोज नहीं है. तो you can also use as a you know preliminary test for your diabetes check करने के लिए. ओके, अब हेक्सोज की बात करते हैं. ठीक है, अब हेक्सोज के ना 2 फॉर्म्स होते हैं, एक ओपन रिंग होती है और एक ओपन फॉर्म होता है और एक रिंग फॉर्म होता है. तो तुमने बहुत बार देखा होगा हम लोग ग्लूकोज को रिंग फॉर्म में ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए ईजी हो जाता है. अब रिंग फॉर्म में भी 2 पार्ट्स बनते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा. तो व्हेन वी आर डूइंग अमाइनो एसिड्स, यू रिमेंबर आई टोल्ड यू अल्फा कार्बन से सब अटैचमेंट्स हो रही हैं एंड ऑल, सेम थिंग है. ठीक है, सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ योर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये ओपन का स्ट्रक्चर है एंड दिस इज योर रिंग स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं पाइरनोज स्ट्रक्चर एंड हार्वर्थ स्ट्रक्चर, क्योंकि हार्वर्थ वॉज द साइंटिस्ट जिसने ग्लूकोज का रिंग शेप वाला स्ट्रक्चर ढूंढा था. समझा? यस. चलो नेक्स्ट, फ्रुक्टोज. दिस इज हाउ योर फ्रुक्टोज इज गोइंग टू बी. सो फ्रुक्टोज इज नथिंग बट आइसोमर ऑफ योर ग्लूकोज. अब फ्रुक्टोज 2 फॉर्म में मिला है, एक D और L. तो अगर तुम D और L में नोटिस करोगे देयर इज एनी चेंज? Is there any change? Yes, it is. ये लेवल पे चेंज है, राइट, है ना चेंज. आइसोमर उसी को बोलते हैं. सो व्हाट इज एपीमर? आइसोमर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरचेंज ऑफ OH और H ग्रुप, OH और H ग्रुप on 2, 3 और 4 कार्बन ऑफ ग्लूकोज. अंडरस्टूड? पक्का? चलो एक सेकेंड वी हैव समथिंग हियर. यस, सो दिस इज हाउ आर एपीमर्स आर देयर. सो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ये साइड पे अगर इफ यू विल सी
On this carbon, if there are changes switching happening, it is going to form your galactose, whereas यहाँ पे अगर फर्स्ट कार्बन पे चेंज किया तो हम लोग को मिला मैनोस. समझा? दोनों ही तरफ एफीमर फॉर्म हुआ है. गुड. नेक्स्ट इज योर ओलिगोसैकेराइड्स. ओलिगोसैकेराइड्स में आएंगे 2291 की कैटेगरी में, जिसमें डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, एवरीथिंग है इनका. मेजरली वी विल टॉक अबाउट डाइसैकेराइड्स. ठीक है. तो ये क्या होता है, हाइड्रोलिसिस. इसमें क्या होता है, 2 to 10 मोनोमर यूनिट्स होते हैं, सेम अल्डिहाइड कीटोन. बट यहाँ पे एक चीज़ है जो हमको याद रखनी है, योर अल्डिहाइड एंड कीटोन ऑफ योर वन मोनोसैकेराइड इज ऑलवेज गोइंग टू रिएक्ट विद द अल्कोहलिक ग्रुप ऑफ अनदर मोनोसैकेराइड एंड इज गोइंग टू फॉर्म योर बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. एंड दे आर गोइंग टू एलिमिनेट वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O. समझा? इसको हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलते हैं. अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड कैसा है, 1:4 के डायरेक्शन में, 1' to 4'. Sorry, but only in fructose you are going to see the changes of 1' to 2'. ठीक है. अभी हमने पढ़ लिया है कि फ्रुक्टोज में थोड़े से एक्सेप्शन से चेंजेस है. सो यू गाइस नो नाउ व्हाट एग्जैक्टली इट इज. तो डाइसैकेराइड्स में यू हैव माल्टोज विच इज योर माल्ट शुगर. लिंकेज कैसी है, 1/4 की है between alpha D glucose, D is your dextrose, and glucose. So this is glucose plus glucose, which is going to give you maltose. It is going to be sweet to taste. Then you have lactose. Lactose is glucose plus galactose. Galactose हमने एपीमर के थ्रू बनाया ग्लूकोज का, राइट? सो ग्लूकोज प्लस galactose, this is going to be least sweet. इसीलिए अगर तुम रॉ मिल्क ऐसे ही पीते हो, मिल्क के अंदर लैक्टोज है ये तो पता है हमको, तो भी वो हमको स्वीट क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसके अंदर, बिकॉज योर लैक्टोज इज नॉट स्वीट बेसिकली. बट इफ़ वी एक्चुअली लुक फॉर, अगर हम लोग ह्यूमन मिल्क की बात करें तो उसके अंदर जो मैक्सिमम लैक्टोज परसेंट है वो सिर्फ 7% है. समझा? देन सुक्रोज, ये तो तुम दिन रात खा रहे हो, जो हमारे घर की शुगर है, टेबल शुगर, दैट इज कॉल्ड सुक्रोज, विच इज फॉर्म बाय ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज. समझा? फ्रुक्टोज इज ओनली जिसमें बीटा डी फ्रुक्टोज लगा है. देन यू हैव टेरालोज विच इज बेसिकली हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स में मिलता है. इंसेक्ट्स में हीमोग्लोबिन नहीं होता, पता है ना? यस. तो इनमें क्या होता है, 2 एनोमेरिक कार्बन्स ऑफ 2 अल्फा ग्लूकोज यूनिट आर गोइंग टू बी देयर. यहाँ पे भी 2 ग्लूकोज अटैच होने वाले, बट इनकी लिंकेज फॉर्म डिफरेंट है, इसलिए कुछ और चीज़ बन रही है. 1/1 की लिंकेज है. ऊपर यहाँ पे 1/4 लिंकेज था जब माल्टोज बन रहा था. समझा? नेक्स्ट विल टॉक अबाउट पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है. अब पॉलीसैकेराइड्स क्या है बेटा? टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी पॉलीसैकेराइड्स, या व्हाट आर गोइंग टू बी पॉलीसैकेराइड्स, जिनके पास बहुत सारे कार्बन्स हैं, बहुत सारे मोनोसैकेराइड के यूनिट्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स बनाएंगे. यस, करेक्ट. ठीक है. अब इसमें हमने पढ़ा था हमारे पास होमो होगा और हेटेरो होगा. अब जनरल प्रॉपर्टीज पॉलीसैकेराइड्स की क्या है, इनके ऊपर हम लोग ऐड कर सकते हैं, लाइक सफिक्स में ऐड करेंगे an, जिसकी वजह से ग्लाइकिन्स बुलाएंगे. तो यू विल हैव पेप्टोसिन्स, हेक्सेन्स. ठीक है. दे आर गोइंग टू बी इनसोल्यूबल इन वाटर एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी स्वीट. नॉन रिड्यूसिंग होते हैं ये, बट इनका एक एंड रिड्यूसिंग शुगर होता है, एक एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, बट द होल कंप्लीट स्ट्रक्चर वी विल कॉल इट नॉन रिड्यूसिंग शुगर. समझा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. एंड में एक रिड्यूसिंग एक नॉन रिड्यूसिंग है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू कॉल इट नॉन रिड्यूसिंग. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद दी पॉलीसैकेराइड. ठीक है. पॉलीसैकेराइड में सबसे पहला, होमो पॉलीसैकेराइड में सबसे पहला क्या है, सेलुलोज, which is having an unbranched and straight chain. ठीक है. It is abundantly found in your cell wall of plants. लिंकेज बनाते हैं 1/4 की. ठीक है. स्टार्च पता है तुमको, स्टोर फूड है. किसका स्टोर फूड है? स्टोर फूड ऑफ, मेरा स्टोर फूड है क्या? प्लांट्स में ना, it is a polymer of alpha D glucose unit. So it is having 2 things, amylose and amylopectin. 20% amylose है और 80% amylopectin. Amylose मतलब क्या? You have 250 to 300 gram. It is an unbranched chain of
1/4 अल्फा लिंकेज फॉर्म करता है। एंड अमाइलोपेक्टिन के 30 मॉलिक्यूलर यूनिट्स होते हैं ग्लूकोज के ही। ऑब्वियसली भी सो ना ग्लूकोज यहाँ पे 2 फॉर्म है, ये ब्रांच होगा और इसमें भी 1/4 लिंकेज होगा। इसमें एक और लिंकेज बनती है 1/6 की भी, ठीक है, इजी। एक अनब्रांच है, एक ब्रांच है, अच्छे से याद रखो। एम आई क्लियर? यस। देन यू हैव ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहाँ पड़ा है? इट इज स्टोर्ड फूड इन, हमारे अंदर है ना, एनिमल्स, हमारे अंदर स्टोर्ड फूड है। यस, अल्फा डी ग्लूकोज 1/4 1/6 सेम लिंकेज। काइटिन या चिटिन जो हम बोलते हैं वो फंगाई की सेल वॉल में होता है। तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ एन acetyl D glucosamine. Very important, remember the name. 1/4 beta linkage, it is a derivative of beta D glucose. लास्ट है इन्यूलिन, जो है लीनियर पॉलीमर ऑफ लैक्टोज, 2/1 बीटा लिंकेज बनाएगा, ठीक है। देन कहाँ किसमें मिलता है? दलिया में, आर्टिचोक में। इट इज सोल्यूबल इन वाटर बट not metabolically active. This line is very important. It is not metabolically active and this is the smallest storage polysaccharide. ये हो गया अपना बात किसका? होमोपॉलीमर्स का होमोपॉलीसैकेराइड का। नेक्स्ट वी हैव इज हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है? यू आर गोइंग टू हैव डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स यूनिट या डिफरेंट मोनोमर्स हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब इनमें क्या है? फर्स्ट एग्जांपल है हाइलोरोनिक एसिड। हाइलोरोनिक एसिड इज वेरी फेमस, तुम लोगों ने बहुत सारी एड्स वगैरह में देखा होगा हाइलोरोनिक एसिड, देखा है ना? कौन सी एड में देखा है? यस, क्रीम की एड में देखा है, लैक्मे की या समथिंग, चलो किसी तो क्रीम में पढ़ा है तुमने। तो अब ये क्या है? ये हमको कहाँ मिलता है हाइलोरोनिक एसिड? विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर क्या आँख में है? विट्रियस ह्यूमर which is responsible for the shape of your eye. Then umbilical cord, then you have joints और connective tissues में होता है as a lubricating agent, ठीक है। फिर animal cell में it is used as a binding agent, तो इसको हम बोलते हैं animal cement. Similarly, if you will see here, I have written pectin में as plant cement, क्योंकि वो वहाँ पे binding agent का काम करता है। Usually cell wall में मिलता है हमको। Then you have chondroitin which is in your connective tissue. Heparin anticoagulant अपने अंदर होता है ताकि blood clot ना हो अंदर या कोई भी टाइप की clottings ना हो। Then pectin we talk. Hemicellulose क्या है? It is a stored material in ivory plant and it is also found in cell wall. Structure में भी use हो रहा है। फिर अगार के बारे में तो सुना ही है। एक different category है जिसको हम बोलते हैं mucopolysaccharide। इसमें क्या होता है? They are nothing but all you need to know is they have the capacity to bind proteins and water. ये उनका मेजर बोलते हैं ना यूनिकनेस है, जिसकी वजह से हम इसको म्यूकोपॉलीसैकेराइड बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटीन और वाटर को बाइंड करवाएगा अपने, मतलब ऑब्वियसली योर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। सो एग्जांपल है यहाँ पर म्यूसिलेज विच इज इन योर प्लांट्स। विद दिस वी आर डन विथ योर कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट एज आई सेड योर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में ना बेस आइडिया हमको पहले से ही है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? इट इज फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस एंड शुगर, राइट। सो फॉस्फेट ग्रुप, राइबोस शुगर, नाइट्रोजन बेस इज गोइंग टू फॉर्म योर न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें एक कैच क्या है मेरे को बताना है। एक टर्म होता है न्यूक्लियोसाइड। हम न्यूक्लियोसाइड कब बोलते हैं? जब मेरे पास सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन बेस है। तो कैन आई से न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप? यस, कूल। अब इसमें क्या बनता है फिर? इससे हमारा बनता है, अभी जो नाइट्रोजनस बेस है वो 4 टाइप के हैं, ATGC। अगर RNA है तो फिर योर T इज गोइंग टू रिप्लेस विथ C, योर T इज रिप्लेस विथ U, करेक्ट। सो 4 टाइप्स हैं। DNA में ATGC, RNA में AUGC। DNA का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स है, RNA का स्ट्रक्चर लीनियर और क्लोज शेप्ड है, ठीक है। अब A और T के बीच में हमेशा होगा डबल बॉन्ड हाइड्रोजन का, एंड G एंड C के बीच में होगा ट्रिपल बॉन्ड। और पूरे न्यूक्लियो
न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो बॉन्ड होगा वो होगा फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ योर नाइट्रोजन बेस हम लोग ने उसको क्या किया, डिवाइड किया इनटू 2 कैटेगरीज, एक होता है प्यूरिन्स और दूसरा होता है पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में आता है A और G, पायरिमिडीन्स में आएगा T और C। इन डिटेल इसके स्ट्रक्चर के बारे में विल स्टडी इन योर 12th स्टैंडर्ड। नाउ इफ यू सी दिस इज योर एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ योर नाइट्रोजन बेस। So this is your adenine, which is your purine, which is having 2 rings, right? And pyrimidine, if you will focus, it is going to have a single ring. ठीक है, so this is adenosine, this is uridine, जिसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं, and this is your whole nucleotide, basically your phosphate, sugar and nitrogen. समझा? Sure. चलो. ओके अभी डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स है, तुमको पता है। सो अगर पूछा कि बैकबोन ऑफ डीएनए कौन फॉर्म करता है तो एसपीएस चेन, मतलब शुगर फॉस्फेट शुगर की चेन जो बनती है वो बैकबोन ऑफ डीएनए है, डीएनए को पूरा फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब डीएनए के स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स है वो ऐसा वाइंड है, राइट। सो दे आर गोइंग टू बी एंटी पैरेलल, 3 अगर एक साइड पे 3 है और इधर 5 है तो ये वाला उल्टा होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 5 एंड दिस इज गोइंग टू बी 3। तो एंटी पैरेलल ही होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे को। एक स्ट्रैंड जो ये ऐसा टर्न होता है ना, ये जो टर्न बन रहा है दिस इज गोइंग टू बी 36 डिग्री। देन एक टर्न में कितने बेस पेयर्स होंगे, मतलब तुम्हारे नाइट्रोजन बेसिस कितने होंगे 10। पिच कितनी है 3.4 एंगस्ट्रॉम की। एंड हमारे पास जो डीएनए वो है बी डीएनए राइट हैंडेड, हैप्लॉइड होगा तो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स, डिप्लॉइड है तो डबल 6.6। अब वायरसेस में लैम्डा फैज के अंदर होता है 48502 बेस पेयर्स एंड 5 फैज में होता है 5386 बेसेस। अब एक चीज़ समझो, मैंने यहाँ पे बेसेस लिखा है बेस पेयर्स नहीं, क्यों, क्योंकि दिस इज सिंगल स्टैंडर्ड, सो इट इज जस्ट सिंगल, सो इट विल हैव नथिंग एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, तो पेयर्स नहीं बनेंगे। क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट एंजाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंजाइम्स। क्यों इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स? क्योंकि एंजाइम्स आर द वन विच आर गोइंग टू speed up the reaction or speed up the process that is happening, but they themselves are not going to take part in the reaction. This is your very important point. ठीक है, तो हम लोग उनको एंजाइम्स को बायो में बायो कैटलिस्ट बोलेंगे, केमिस्ट्री में तुम कैटलिस्ट वर्ड यूज करते हो। One more thing you need to remember, your all enzymes can be hormones, but your all hormones are not enzymes, right? Sure. एंड सारे एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स होंगे, बट सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होते। क्लियर? सो कमिंग बैक, अब एंजाइम्स ना बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। आई कांट यूज एन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम ऑन ऑक्सीडेशन का पॉइंट, जिसका जो एंजाइम है वो वही उसका काम करेगा। देन दे आर गोइंग टू बी वेरी पर्टिकुलर विद टेम्परेचर, सो दे नीड एन ऑप्टिमम टेम्परेचर, pH। ओके, तो बहुत स्पेसिफिसिटी है एंजाइम्स की। सो एंजाइम्स के बारे में किसने बताया था हम लोग? कुन्हे ने बताया था इन 1878। सो एंजाइम एक्टिविटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी रेंज बिटवीन 20 डिग्री टू 40 डिग्री। टेम्परेचर इंक्रीज एंजाइम्स डीनेचर्स, टेम्परेचर डिक्रीज लो इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। सो एज आई सेड ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम विच इज एक न्यूक्लिक एसिड है वो, ठीक है। occurs in colloidal state and are often produced in an active state। जो जब भी ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्रोएंजाइम या zymogens। ये एक्टिवेट कब होंगे? सो जब उनको सूटेबल टेम्परेचर, pH और सबस्ट्रेट मिलेगा, ठीक है। एंड दे आर गोइंग टू बी स्पेसिफिक इन नेचर। अब इसी के बेसिस पे हमने डिवाइड किया एंजाइम्स को इनटू 2 कैटेगरीज, सिंपल एंड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब साथ में कोई होगा। सिंपल है जो सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं, एग्जाम्पल है अमाइलोज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। कॉन्जुगेट में एग्जाम्पल है प्रोस्थेटिक। कॉन्जुगेट मतलब बेसिकली एक प्रोटीन होगा, एक नॉन प्रोटीन ग्रुप होगा। सो प्रोटीन ग्रुप को हम बोलेंगे एपोएंजाइम, नॉन प्रोटीन ग्रुप को हम बोलेंगे कोफैक्टर। तो इसमें अपने पास 3 कैटेगरीज बन जाती हैं। एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप, देन यू हैव कोएंजाइम एंड देन यू हैव मेटल आयन, ठीक है।
प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या होता है, दे आर गोइंग टू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑलवेज, ठीक है, दे विल बी टाइटली बॉन्डेड टू योर एपोएंजाइम्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो एग्जाम्पल है पेरोक्सीडेज, जो हम लोग को ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन करना है तो वो फॉर्म होता है पेरोक्साइड से हम लोग निकाल रहे हो। कोएंजाइम में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी कोफैक्टर ऐड नहीं है, एपोएंजाइम ही है सिर्फ। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एसिटाइल कोए। कहाँ पढ़ा था एसिटाइल कोए, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में और रेस्पिरेशन प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने एसिटाइल कोए, पाइरुवेट, लिंक रिएक्शन, यस। एंड मेटिल आयन में क्या है, एक तुम्हारा एपोएंजाइम होगा और कोफैक्टर के फॉर्म में यू आर गोइंग टू हैव एन मेटिल आयन। एग्जाम्पल है जिंक, जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज के यहाँ पे यूज होता है। समझा एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा तो समझा है, श्योर। चलो लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स बेस्ड ऑन देयर कैटेगरीज, उनका कैसा फंक्शन है, परफॉर्मेंस, ठीक है। सबसे पहले यू आर गोइंग टू हैव ऑक्सीडोरिडक्टेज है। सी अंडरस्टैंड, इधर जो भी सारे नाम है ना हमने ऑलरेडी पढ़े हैं कहीं ना कहीं पे। ऑक्सीडोरिडक्टेज कहाँ पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, याद आ रहा है। दे पार्ट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सलेट, सक्सिनेट, डिहाइड्रोजनेज, नाइट्रोरिडक्टेज। ऑक्सीडेशन में हेल्प करेंगे इसलिए ऑक्सीडोरिडक्टेज बोल रहे हैं। ट्रांसफर इज टू ट्रांसफर वन मॉलिक्यूल टू अनदर बॉन्ड, एग्जाम्पल है ग्लूटामेट, ट्राइरुवेट, ट्रांसअमाइनेज। फिर हाइड्रोलिसिस, किसमें, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अलग करने में हेल्प होगा, एग्जाम्पल है अमाइलेज, सुक्रेज, लैक्टेज। लाइसेज इज गोइंग टू हेल्प यू टू सेपरेट और वी कैन से कट थिंग्स। लाइगेज इज गोइंग टू हेल्प यू टू जॉइन थिंग्स। इसके बारे में हम लोग बायोटेक वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल है हिस्टिडीन, डी कार्बोक्सिलेसिस, अल्डोसिस एंड कार्बोनिक अनहाइड्रेस। आइसोमरेजेस की एग्जाम्पल क्या है, आइसोमरेज मतलब बेसिकली वो सेम स्ट्रक्चर और फॉर्मूला के बेसिस पे कुछ बनाना है तो आइसोमरेज यूज करेंगे, ठीक है। एपीमरेज एग्जाम्पल है म्यूटेज, आइसोमरेजेस। लाइगेज का मैंने तुमको बोला चिपकाने में, यू हैव पाइरुवेट, कार्बोक्सिलेज, इजी। अब हमको पढ़ना है समथिंग कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, अंडरस्टैंड वन थिंग, जब भी मैं एंजाइम यूज़ करूँगी तो मेरा रिएक्शन फास्टर होगा, जब मैं एंजाइम यूज़ नहीं करूँगी तो मेरा रिएक्शन रेट स्लोअर होगा। तो वो जो रेट होता है जब हम लोग वो डिस्कस करते हैं, दैट इज़ योर एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमको एक ग्राफ मिलता है, ग्राफ के थ्रू समझते कि क्या हो रहा है, ठीक है। देखो हाउ एंजाइम्स आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द रिएक्शन। अभी ये मेरा एक ग्राफ था, ठीक है, मैंने सबस्ट्रेट लिया, सबस्ट्रेट क्या है, जिसके साथ रिएक्शन करना है, राइट। तो सबस्ट्रेट है, अब ये वाला जो छोटू ग्राफ दिख रहा है इसमें क्या था, विथ एंजाइम। सो विथ एंजाइम वो जल्दी हो गया, विदाउट एंजाइम उसको टाइम लग गया। तो ये विदाउट एंजाइम वाला है, ये विथ एंजाइम वाला है, छोटू वाला, यस। तो क्या हुआ, दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगी, ऑब्वियसली विदाउट एंजाइम में एनर्जी ज़्यादा लगी है। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, इट इज़ अ सबस्ट्रेट इज बाउंड टू एक्टिव साइड। एक्टिव साइड मतलब क्या, जहाँ पे एंजाइम को आने की एंट्री होती है। सी जैसे मैंने बोला स्पेसिफिसिटी होती है, कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं हो सकता। सबस्ट्रेट अगर उस एंजाइम को आने की एंट्री देगा तो ही होगा, तो वो जो एंट्री पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एक्टिव साइड। सो सबस्ट्रेट इज बाउंड टू एक्टिव साइड एंड न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट इज फॉर्म्ड, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। टर्नओवर क्या होता है, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट पर मिनट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम खुद तो रिएक्शन में रोल प्ले नहीं करने वाला ना, इसके लिए हम लोग को प्रोडक्ट की काउंटिंग भी चाहिए। देन बेस्ड ऑन दिस हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो दो टाइप के बन जाते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जब तुम्हारी एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। देन एंडोथर्मिक क्या होता है, जब एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। एंड एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेसर देन द सबस्ट्रेट, वेयर एज इन एंडोथर्मिक ऐसा नहीं होगा, और ये थोड़ा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है।
दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझने की कोशिश करो इसको, ठीक है। नाउ एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सबस्ट्रेट, डिफरेंस बिटवीन एवरेज सबस्ट्रेट प्लस योर ट्रांजिशनल स्टेट। समझा क्या डिफरेंस आया है वो? अब केमिकल रिएक्शन इज योर चेंज इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अपॉन योर नीचे कितना टाइम लगाया, ओके। इसलिए हमने वो ग्राफ वैसा बनाया था। अब रिएक्शंस जो है वो दो फॉर्म के होते हैं, तुमको पता है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। हम लोग मेटाबॉलिज्म में भी उसको वैसे ही कंसिडर करते कि नहीं? यस। तो कोई भी रिएक्शन में क्या होता है? यू हैव एंजाइम, यू हैव सबस्ट्रेट, यू आर गोइंग टू हैव द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन, और फिर अगेन यू विल फाइल एंजाइम एज अ सेपरेट। सो सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम लिया था मैंने, तो उसके रिएक्शन में मुझे मिला प्रोडक्ट प्लस अगेन एंजाइम। एंजाइम वापस लिबरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यस। अब इसी के बेसिस पे ना हमारे पास दो हाइपोथेसिस है। क्या है? दो हाइपोथेसिस की है एंजाइम्स कैसे सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते होंगे। वो दो हाइपोथेसिस का नाम है, एक है इंड्यूस फिट मॉडल और दूसरा है लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। अब नाम से समझो, लॉक एंड की स्पेसिफिक है, उसी के चाबी से खुलेगा। लॉक एक्टिव साइट में मैंने चाबी डाली, ओपन किया, खुल गया, लॉक एंड की। अब इंड्यूस फिट मॉडल में क्या होता है ना, उसमें हमारा जो सबस्ट्रेट है, अब जो एंजाइम है वो लोग अपना शेप वगैरह चेंज करके एडजस्ट कर रहे हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग, ठीक है। सी, सो इफ यू सी दिस इज योर की विच इज द सबस्ट्रेट, लॉक इज योर एंजाइम, ज्वाइन किया, फॉर्म किया लॉक एंड की कॉम्प्लेक्स, करेक्ट, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। The active site is like a lock to which the substrate fits like a key. The enzyme's active site and substrate should fit like lock and key to initiate a reaction of ES complex. अब induced fit hypothesis क्या होता है? अभी ये 1894 में है, induced fit जो है वो काफ़ी बाद में आया, which is in 1958. तो a hand in a glove model. So binding of a substrate induces a conformational change in the active site and both adjust their shapes. ये बोल रहा है कि वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं शेप, लेकिन फिर भी वो लोग स्पेसिफिक है। ये स्पेसिफिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो एज तो ये लॉक एंड की के बारे में अपने को किसने दिया था? फिशर ने दिया था। किसने दिया था? फिशर ने, इन 1894। दिस इज बेस्ड ऑन योर ज्योमेट्रिक शेप, ठीक है। लॉक की एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन। नेक्स्ट इंड्यूस फिट मॉडल किसने दिया था? कोशलैंड ने 1959। दिस इज बेस्ड ऑन द कैटालिटिक रिएक्शन एंड बटर स्ट्रेसिंग ऑफ योर वीकर थिंग्स, राइट, वीकर बॉन्ड, तभी वो हाइड्रोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूट्रोफिलिक फोर्सेस अटैच होंगी, शेप रिएक्शन। तो इफ यू विल सी दिस, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, ये मेरा सबस्ट्रेट एंटरिंग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, अटैच किया, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर क्या हो गया? एंजाइम चेंजेस द शेप स्लाइटली एज सबस्ट्रेट बाइंड्स। एंजाइम अपना ये चेंज कर रहा है, क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट अलग करना है ना, प्रोडक्ट को अलग भी तो करना है, वरना प्रोडक्ट अलग कैसे होगा? समझ रहा है? समझा? पक्का? सी दिस एग्जैक्ट इमेज इज गोइंग टू बी इन द क्वेश्चन एज वेल। अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसी ही इमेजेस होती हैं इनकी, इसीलिए स्पेसिफिकली आई हैव एडेड दिस। अंडरस्टूड? शैल वी गो अहेड? द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज योर इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन। सी, एंजाइम का एक्शन शुरू कर दिया, लेकिन रोकना भी तो पड़ेगा। यस, रोकेंगे नहीं तो वो कंटिन्यूस चलता रहेगा, एंड दैट आई डोंट नीड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वेरी सिंपल, there are three things that you have to remember. First is your competitive inhibitor, second is non-competitive, and third is allosteric feedback या feedback inhibition. ठीक है, competitive में क्या है? It is going to interference the active site of enzyme so that it cannot bind. जैसे तो हम लोगों को याद है, हम लोगों ने लोकोमोशन में वो मास्किंग वाला पॉइंट्स वगैरह पढ़े थे, मास्क हो जाता है तो फिर प्रोसेस बंद हो जाएगा, ये क्रॉस ब्रिज ब्रेक होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या कर रहा है? हमारा जो एक्टिव साइट है एंजाइम का, उसको हम लोग इंटरवेंट कर देंगे।
तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है वहाँ पर जाके अटैक करते हैं, तो वो मास्क हो जाता है, ऐसा समझो अभी के लिए। तो तुम्हारा बाइंडिंग साइट चला गया, बाइंडिंग साइट चला गया तो एंजाइम चिपक के नहीं रहेगा, निकल जाएगा, प्रोसेस ब्रेक हो गया या खत्म हो गया। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, दिस इज गोइंग टू ऑकर बाय चेंजिंग द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। इंड्यूस फिट मॉडल इसीलिए बना है। थर्ड इज योर एलोस्टेरिक फीडबैक which is a reversible inhibition reaction where the intermediate product is going to act as a inhibitor। यहाँ पे कोई अलग से हमको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ही इनहिबिटर के जैसा एक्ट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। इसीलिए इसका नाम बनता है एलोस्टेरिक फीडबैक। इट इज़ अ काइंड ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म दैट इज रनिंग। समझा? आर यू श्योर गाइस? विद दिस we have finished a very important chapter which is your biomolecules. Now from next class or further videos are going to be on your 12th standard biology chapters. So I hope you enjoyed the class, and now we are going to meet in the next class with the very fresh start of new 12th first chapter. Okay, so I see you guys later. Bye.